اب دیکھیں پہلا سوال ہی کتنا کریٹیکل ہے، یہ بہت اہم ترین سوال ہے دین الہی کے اعتبار سے، جو ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے آج لوگوں نے پوری دنیا کے اندر کامن ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ کیا قرآن حکیم میں ایسی کوئی آیت ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ قیامت کے دن نجات کے لیے کافی ہے اور ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں بھائیو، ایک آیت ایسی ہے قرآن حکیم کے اندر، اور وہ ریپیٹ بھی ہوئی ہے مختلف مقامات پر، جس کی غلط انٹرپریٹیشن ان لوگوں نے کی ہے جو دین الہی کے کانسیپٹ کو، کامن ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارا بگاڑ جو ہے یہ انبیاء کی وجہ سے آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایک خدا کا کانسیپٹ رہتا تو خدا کو تو ہندو بھی مان رہے ہیں بھگوان کہہ کر، اور سائنٹسٹ بھی سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی کہہ کر مانگ رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، مسلمان اسے اللہ کہہ کے مان رہے ہیں، گورے اسے گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں، اور اس طریقے سے جوز اور کرسچنز بھی اس کو مان رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں۔ یہ اختلاف جو ہے یہ پروفٹس کی وجہ سے شروع ہوا ہے کہ موسیز کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہو گئے، جیسس کرائسٹ کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا ہے کہ ایکسس آف ایول یہ ہے ایمان بالرسالت، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی باطل فرقے دنیا میں موجود ہیں وہ ہمیشہ پلی جو ہے انہی دلائل کے ساتھ لیتے ہیں جو دلائل دنیا کے اندر جو ہے وہ الہامی کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک آیت قرآن میں ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق سے ہٹا کر لیتے ہیں، وہ آیت قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 62۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے کرامت، میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہوا تھا، ڈائریکٹ میں نے کھولی ہے تو وہی آیت کھل گئی ہے، اس کو کہتے ہیں کرامت، یہ جائز کرامت جو ہم جس کو کرامت مانتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے یعنی مسلمان جو ہیں، والذین ہادوا اور جو کہ یہودی ہیں، والنصارى اور جو کرسچنز ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی جو کہ ایران کے اندر لوگ ان کے فالوور موجود تھے، اس سے مراد آتش پرست نہیں ہے، یہ صابی الگ سے ایک مذہب ہے۔ من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور وہ نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسوں کے لیے پھر ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم اور انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں تو کلیئر کٹ یہ بات آئی ہے کہ 3 شرائط ہیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے: اللہ پر ایمان نمبر 1، نمبر 2 آخرت پر ایمان، اور نمبر 3 نیک اعمال۔ تو وہ اس آیت سے پری لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو ایمان برسالت کی جو ہے وہ ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے، لہٰذا ایمان برسالت ضروری نہیں ہے۔ اب ہمارے بھولے بھائی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح مسلم سے حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں کتاب الایمان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی عیسائی دوزخ میں جائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ او میرے بھولے بھائیو، وہ تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، آپ ان کو حدیث والا کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا، ان کے بقول۔ تو اب اس کو سمجھ لیں، یہ آیت جو ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے تقریباً 9 رکوعوں کے اوپر، جو کہ 5ویں رکوع سے سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ البقرہ کے، اور اس کے سٹارٹ میں ہی یہ بات آ گئی ہے کہ اے یہودیو، پرٹیکولرلی اہل کتاب، کہ ایمان لے آؤ اس کتاب کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور سب سے پہلے تم تو کفر نہ کرو اس کتاب کا، یعنی تمہیں تو پتہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر اس کی پریڈکشنز، پروفیسیز موجود ہیں۔ تو ایمان بالرسالت کا ذکر تو اس پوری گفتگو کے سٹارٹ میں ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر جو ہے یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ایمان بالرسالت کا پہلے ذکر ہو چکا اور یہ ذکر آگے آیا ہے۔ ایک تو یہ جواب، دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر تو سب مسلمان تھے۔ یہودی اس وقت تک تو مسلمان تھے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے ان میں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، اس سے پہلے تو یہودی مسلمان تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے۔
फिर हजरत ईसा अलैहि सलाम के जो मानने वाले मुसलमान ही थे, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो जो लोग उनको मान लिया मुसलमान बाकी रहे, बाकी लोग फिर काफिर हो गए क्योंकि उन्होंने एक और पैगंबर का इनकार कर दिया। लिहाजा अपने अपने अदवार में तो सब के सब लोग मुसलमान ही रहे, लेकिन जो जो पैगंबर आते गए, जो जो इनकार करता गया वो अलग होता गया। तो ये भी इस एतबार से इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस बात को समझने की कोशिश करें। ईमान बिर रिसालत का पहले भी जिक्र हो चुका है और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कोट हुआ है। इसको आप इस मिसाल से समझें कि मैं कहता हूं जी डाकखाने में टेलीफोन और बिजली के बिल जो हैं वो सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक जमा होते हैं सपोज, तो आप इतवार वाले दिन पहुंच जाते हैं सुबह 9 बजे, 10 बजे तक इंतजार करते हैं। आप कहते हैं जी अली भाई ने कहा था ये जमा होते हैं बिल, तो ये तो खुला ही नहीं है डाकखाना। तो भाई इसकी दूसरी शिक यह है कि अदर देन इतवार, संडे के अलावा, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है, संडे के अलावा जो है बिल जमा होते हैं, ये दूसरी शिक होगी। आप उस शिक को छोड़ के सिर्फ कहेंगे जो 9 से लेकर 5 तक जमा होते हैं, दूसरी शर्त को कंसीडर ही ना करें तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इसी तरीके से ईमान बिर रिसालत का जिक्र पहले गुजर चुका, वो उसी तरह है जैसे कि संडे वाले दिन छुट्टी होगी, और यहां पर एक जनरल चीज आई कि ईमान बिल्लाह और ईमान अल्लाह पर क्या है, इस लाने का हक यह है कि आप उसके तमाम पैगंबरों को माने। ये नहीं है अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के कुछ हिस्से को मान लो कुछ को नहीं मानते। और फिर ये तो कुरान के अंदर आया ना, कुरान बाकी छोड़ देंगे आप? बाकी कुरान तो नहीं छोड़ेंगे। कुरान ने आपको यह बताया ना कि जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान ले और नेक अमाल करे उसके लिए बख्शिश है, तो कुरान ही ने तो बाकी कहा है कि जो है वो ईमान बिर रिसालत भी लाना जरूरी है। इस हवाले से आप देखें सूरह आल इमरान में जो आयत है बड़ी मशहूर, सूरह आल इमरान आयत नंबर 31, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाओ कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। तो अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है, तो ये भी तो आयत है ना, इस आयत को भी तो माने ना। इसी तरीके से आया सूरह निसा की आयत नंबर 80 में, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। अब ये भी उससे भी बड़ी चीज है। और अब इस हवाले से बड़ी सख्त एक और आयत मुबारका भी मौजूद है, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 51 और 52, ये छठे पारे के अंदर पहले सफे के ऊपर ये आयत मुबारका मौजूद है, जो मसला नंबर 35 जो मुनकरीन हदीस के फितने का तहकीकी जायजा, उसके अंदर मैंने इस आयत को अल्हम्दुलिल्लाह कोट कर दिया था, पारा नंबर 6 के पहले सफे पर, सूरह निसा की आयत नंबर 51 और 52, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 150, 151 और 152 ये आपको क्लियर कर देगा कि ईमान बिर रिसालत का इनकार करने वाला गोया अल्लाह का इनकार करना है। लिहाजा वहां जो सूरतुल बकरा में आया ना कि अल्लाह पर ईमान लाओ, इसमें इंप्लाइड है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसके पैगंबरों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि, जो सूरह अल बकरा की आखिरी आयत में है। अब ये सुने सूरतुन निसा, ये डिसाइसिव आयत है, आयत नंबर 150, 51 और 152, इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिल्लाह, बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह के साथ, व रुसुलिहि, और उसके रसूलों के साथ। अब देखना रसूल का जिक्र भी आया, अल्लाह के साथ कुफर करते हैं उसके रसूलों के साथ, वयुरीदूना अन युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रुसुलिहि, और वो चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क डाल दें, कि अल्लाह को मानेंगे रसूलों को नहीं मानेंगे। एक है रसूलों के दरमियान फर्क, वो वहां पर आया सूरह आल इमरान के अंदर और सूरतुल बकरा में, ला नुफर्रिकू बैना अहदिम मिन रुसुली। एक है तफरीक करना अल्लाह और उसके रसूल के अंदर, ये है क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल एक ऑर्गेनिक होल है, उनकी दावत तो एक है। मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, अल्लाह और रसूल इन मानों में तो एक है कि दोनों की दावत एक है। वैसे वो खालिक और मखलूक का फर्क तो अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल में फर्क नहीं कर सकते, उसकी दावत एक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे जो लोग ये चाहते हैं वह युरीदूना अन युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रुसुली, कि अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क डाल दें, कि अल्लाह को मानेंगे रसूलों को नहीं मानेंगे। ये देखें, ये जो दीन इलाही के जो परस्तार थे उनका रद्द पहले ही कुरान हकीम में हुआ है। कितनी क्रिटिकल आयत है। वयक़ूलूना नुअमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद, और वो ये कहते हैं हम बाज को मानेंगे बाज को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम अल्लाह को मानेंगे, फलां रसूलों को मानेंगे, फलां रसूलों को नहीं मानेंगे। और बाज कहते हैं हम बाज रसूलों को मानेंगे, उन रसूलों को नहीं मानेंगे। ज्यूज कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानेंगे।
बाकी पैगंबरों को हम मानेंगे। क्रिश्चियंस कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानेंगे, नाऊज़ बिल्लाह। हम मुसलमान तमाम अंबिया को मानते हैं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली के तहत ईमान लाने में हम उनमें फर्क नहीं करते। मर्तबे का फर्क है। तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह ताला ने रसूलों में एक दूसरे के ऊपर फजीलत दी हुई है। रसूलों में ईमान लाने में हम फर्क नहीं करते, मर्तबे का तो फर्क है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर आप किसी दूसरे पैगंबर की डिग्रेशन नहीं कर सकते, उनको आप नाऊज़ बिल्लाह उनकी तज़लील नहीं कर सकते, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। व युरीदून अन यत्तखिदू बैना ज़ालिका सबीला, और ये इनकी ख्वाहिश है कि हमको दरमियान का रास्ता निकाल लें कि अच्छा अल्लाह को माना, इस पैगंबर को मानेंगे, इस पैगंबर को नहीं मानेंगे। ये दरमियान का एक रास्ता वो निकालना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा जो दरमियान का रास्ता निकालेगा ना, कि फलां को मानेंगे मर्जी के पैगंबर को, फलां को नहीं मानेंगे। कितना गाढ़ा फतवा अल्लाह ताला की तरफ से है। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये लोग कट्टर काफिर हैं जो ये फर्क करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के अंदर। एक है रसूलों में फर्क करना, यहां कहा गया अल्लाह और रसूल में जिसने फर्क कर दिया वो कट्टर काफिर है। तो ये आयत भी तो है ना कुरान के अंदर, सूरतुल बकरा की अगर 62 नंबर आयत है तो सूरतुल निसा की ये भी तो आयत है ना। ये लोग कट्टर काफिर हैं। व आतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना, और ऐसे काफिरों के लिए तो अल्लाह ने दर्दनाक, बल्कि इसका सही तर्जुमा होगा जलीलो ख्वार कर देने वाला अजाब, मुहीन अजाब ऐसा जो जलीलो ख्वार कर देगा, उन कट्टर काफिरों के लिए तैयार कर रखा है जो अल्लाह और उसके रसूल के अंदर फर्क कर देते हैं। और मैंने इसी से ये रिजल्ट निकाला है कि जो किताबुल्लाह और सुन्नत में भी फर्क कर देता है ना, कि किताबुल्लाह को मानेंगे सुन्नत को नहीं मानेंगे, वो भी किसी ना किसी फॉर्म में इसी कैटेगरी में फॉल होता है। इसीलिए मुनकरीन हदीस के कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने लेक्चर दिया था, मसला नंबर 35, वो इन्हीं आयात के कॉन्टेक्स्ट में दिया था सूरतुन निसा में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला बात है, ये लोग कट्टर काफिर हैं। वल्लदीन आमनु बिल्लाह, और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वह रसूली, और उसके तमाम रसूलों पर, वलम युफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, और किसी में फर्क नहीं करते, ना अल्लाह और उसके रसूल में फर्क करते हैं और ना रसूलों के अपने दरमियान फर्क करते हैं। ये दो तफरीकें हैं, एक अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक और एक रसूलों के दरमियान तफरीक। तो जो लोग इस तरीके से ईमान लाते हैं, उलाइका सौफा युतीहिम उजूरहुम, ऐसे लोग हैं जिनको अनकरीब उनका अजर दिया जाएगा। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है ऐसे लोगों के लिए। ये बहुत बड़ा फितना था आज के दौर के अंदर, और अक्सर मुझे ईमेल्स आती थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की बरकत से आज ये इशू भी रिजॉल्व हो गया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 62 को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो कोट करते थे, कुरान हकीम की को पूरा टोटलिटी में लेना है। ये नहीं है कि चंद हिस्से ले लिए, चंद नहीं लिए। और मैं आपको ये पहले भी कई बार बात कह चुका हूं कि कुरान हकीम उस वक्त तक एक कामिल किताब है जब तक ये मुकम्मल है। कुरान का एक सफा भी अगर आप फाड़ दें तो ये कामिल हिदायत के लिए काफी नहीं रहेगी। क्यों? किस्सा आदम और इब्लीस कुरान हकीम में 7 दफा बयान हुआ है, और 6 जगह यही आता है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इससे तो क्लियर कट यही पता चलता है कि इब्लीस भी फरिश्ता था। और दूसरी तरफ कुरान हकीम में जगह जगह यह बात आती है कि फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो तो उसके हुक्म के पाबंद है। इंसान परेशान हो जाता है। और सूरह निसा की आयत नंबर 82 है कि अगर कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तुम इसमें इख्तलाफ पाते, क्योंकि इतनी मोटी किताब है, इंसान ने लिखी हो तो भूल जाए पहले सफे पे क्या लिख के आया हूं और आखिर में क्या कंट्राडिक्शन हो। लेकिन सूरतुल कहफ में फिर ये ट्रुथ रिवील हुआ, काना मिनल जिन फफसक अन अम्री रब्बी, वो जिन्नों में से था इसलिए उसने अपने रब की हुक्म की नाफरमानी की। अच्छा, जिन्नों में से था तो फिर उसको तो हुक्म ही नहीं था सजदा करने का, सिर्फ फरिश्तों को हुक्म हुआ था। वो फरिश्तों की कैटेगरी में फॉल करता था। इसको अरबी में कहते हैं तगलीब का कायदा, कि डोमिनेंसी को देखा जाता है। यानी एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं उसमें से 49 जो है वो मेल स्टूडेंट्स हैं, एक फीमेल है, और जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहता है बॉय स्टैंड अप उस्ताद के आने पर, इसका यह मतलब नहीं कि उसे एक लड़की ने खड़ा नहीं होना, वो उसमें इंप्लाइड है। ये अरबी में तगलीब का कायदा। इसलिए आप देखें अक्सर मर्दाना सीगों से खिताब हुआ है, ये मतलब नहीं है कि वो औरतों के लिए वो बिशारते नहीं है, वो इंप्लाइड है, अरबी का उसूल है। तो ये तगलीब का कायदा था, और वहां पे भी फरिश्ते सारे थे, एक ही जिन था, तो सबको इंप्लाइड था। फिर अल्लाह ताला ने उसका भी वहम निकाल दिया कि उसकी अल्लाह ताला से डिबेट हुई है। अल्लाह ने फिर उससे पूछा कि बता तुझे किसने मना किया। तो ये जो मामे आज कह रहे हैं कुरान में ये फाड़ निकाल रहे हैं नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो उनसे पूछें कि उस वक्त शैतान कह देता ना, या अल्लाह तू तो फरिश्ते को हुक्म देता है, मैं तो फरिश्ता है ही नहीं है। लेकिन उसने आगे से बहस की, और किस लेवल की बहस की, वो मेरा मसला नंबर 79, अल्लाह, इंसान और शैतान
2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، قرآن حکیم سے کراس ریفرنسز سارے لے کر میں نے الحمدللہ اس ایشو کو ریزالو کیا ہے. یہ بھی الحمدللہ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 والا ایشو بھی الحمدللہ ریزالو ہوا.